Hello, my dear student. Have a wonderful morning to one you all. I welcome you on a video lecture class. Students, in our previous lecture class, we have completed the first chapter of English literature. That was The Fun They Had. The first chapter, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. It was completely completed. And I also discussed with you the gist of that chapter, the central theme of that chapter, and some question answer, short question answer, and value based question answer and long answer. I just discussed with you, and you will get the type note of these question answer. So after completing that chapter, we will start our language portion. And in language portion, the first and prominent topic, that is your parts of speech. Parts of speech is very familiar topic to you. It's not new one for you. So student, in English language, parts of speech are a very significant part, and it plays an important role to come to know the proper structure of the sentence. If we want to come to know the proper structure of the sentence, we must know parts of speech. We can say parts of speech are the soul of English language. Without knowing it very well, we cannot know the proper arrangement of the sentence. We can only come to know the proper arrangement of sentence if we have thoroughly knowledge of parts of speech. It really plays an unique role in making the proper arrangement of the sentence. And if we want to come to know the name of the words that we put in framing the sentence, which type of the words are they, if you want to come to know the name of the particular words, so we have to know what is parts of speech. It means to say that before starting English language, before starting English grammar, the first and foremost thing is that we must know parts of speech. It's a foundation of the English language. It's the thing that you have it very well. If you don't have any idea about parts of the speech, you cannot do the proper arrangement of sentence. You cannot come to know which word is this, and you cannot change the verb into adjective and the adjective into noun like this. So student, we will start today, and you have to pay proper attention because this is very important for you. It's very significant for you. So student, I told you what's parts of speech. By parts of speech, we come to know the proper arrangement of the sentence, the proper structure of the sentence, and the thing is that we come to know the basically when we write any sentence, in the sentence we put some words 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 according to the length of the sentence. If the sentence is so long, we put so many words. But if we want to come to know, the proper name of those words, so how can we come to know? I'm just writing here a sentence, so it will be clear to you. Suppose that there is a sentence. Anjali is not paying attention. Anjali is not paying attention in class. Okay, so this one is sentence before you, and if I tell you, if I ask you that do the operation of this sentence, tell me the name of the words which are written in the sentence, so how will you come to know? How will you tell me? If I ask you, tell me the name of the particular words which are written in the sentence, so how will you come to know? Anjali, what is Anjali here? I think you know this one, but I'm just asking you. Anjali and is, what is not, what is paying, what is attention, what is in, and what is class. So you are seeing here that there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 words are there, and group of words. This is the group of words,
and group of words is arranged in a proper order and it gives a meaningful sense. It gives a meaningful sense. That's why it's called a sentence, because a sentence must be given a meaningful sense. Without meaningful sense, a sentence is not completed. So how will you come to know? So we come to know this thing, the proper name of the particular words, the proper name of the particular words which are written in a sentence. We will come to know only knowing parts of speech. So student, we will study parts of speech today. That's very important topic, I told you. So the first and foremost thing is that how many parts of speech are there? How many parts of speech? So I hope so that you know very well. These are 18 number. The first one is a noun. These are 18 number. That is very common. Noun. This is very common. And second one is your pronoun. That one. Pronoun. Fine. And the third one. The third one is your adjective. Fine. Third is your adjective. And the fourth one is your verb. Fine. The fifth one is your adverb. Fine. And the sixth one is your preposition. Okay. And the seventh one is conjunction. Fine. And the last one, that is number 8, this is your interjection. That is your interjection. So everyone look at the board. These 8 numbers or parts of speech are written over here. The first one is noun, second one is pronoun, third is adjective, and fourth one is your verb, fifth is your adverb, and preposition, conjunction, and interjection. These are 8 in number. So first today we will take the first one, that is the noun. Everyone knows what is noun. Everyone knows what is noun. Noun, the simple and very easy definition is that noun is the name of any person, place, or thing. Noun is the name of any person, place, or thing. You can say nouns are the naming words. Nouns are the naming words. Whatever the things, or all types of the things which are presented in all over the world, these are in the category of the noun. And the name of the person, all the name of the person who are presented in all over the world, these are in the category of the noun. And the name of the places which are presented in all over the world, these are also in the category of the noun. So 3 things are there: name of the person, name of the place, and name of the things. So in a brief way, in a concise way, we can say that nouns are naming words. If we give any name of anything, suppose that there is a book. I am having a book on my hand. That one is book. So I gave, this is a type of the thing. I gave a name to this one. So I gave a name to this thing. This is a book. So what is book? Book is a noun, because it's a thing. It's a name of anything. So it's a noun. Fine. And many things. Just suppose that this is another thing, my hand. So I just give a name to that one. So this is a duster. So duster is also a noun. So I'm just telling you that whatever the things, each and every type of the things which are pervading in all over the world, which are presented in all over the world, these are in the category of the noun. It means to say anything cannot be called except noun. Everything is noun. Fine. And I'll teach you only the superficial part of the noun, because you will know what are the kinds of noun. What are the kinds of the noun? I'm just giving you a glimpse of that, because you have to only know the parts of speech. Simple thing is that you have to know the parts of speech, because it's very broad. If we go into deep and
go into deep the noun, so it will really very extra burden upon your shoulder, and you will not study it. So what is noun and the kinds of noun I'll teach you today. So proper noun, these are 5 in number: proper noun, common noun, material noun, abstract noun, and collective noun. These are 5 in number. Proper noun is a particular name of person, place, or thing. Particular name. If you take the name of your teacher, if you take a name of your teacher, so just like Mr. Sharma, Mrs. Mishra, like this. So this is the particular name of person. So this is your proper noun. If we take a name of particular place, suppose that you live in Kanpur at Navasta, so this is a particular name of place. So this is a proper noun. And thing, suppose that I'm having a book on my hand. This one. So the book is your common noun, but the English reader, advanced English reader book. So the name of the book specify it. It specifies the book. It means it's a proper noun. When we points out something particular thing, when we individualizes something, so that is the proper noun. Fine. So proper noun is that type of the thing, and common noun means common name of person, place, or thing. Just like students, boys, girls, cities, countries, like this. It's a common thing. It's not individual thing. It's not particular thing. It's not a special thing. Fine. And material noun means such type of the noun that such type of the noun in which substance and phenomenon come, just like material that we use to make something new, just like curd, milk, and we can also take some materials like oil and copper, gold, silver. So these are the things that we use to make something new, to make something another thing. So these are in the category of the material noun. And the fourth one is your collective noun. The fourth one is your collective noun. So collective noun means a collective, it's an adjective, and a collection, it's a noun. So how you come to know these things? If you have proper knowledge of parts of speech, so in an easy way you will come to know what is your noun, what is your adjective, what is your adverb, and what's your preposition, what's your conjunction, and what's your interjection. You need not to bother that how will you come to know this thing. So student, collective noun. Collective noun is a collection of things, just like very simple example for you class. Whenever you sit, whenever only one student is there, that is not the class. Class means a collection of a group of some student. A group of some student is called a class. A group of soldiers is called army. Like this, a group of member is called committee. Like this, a bunch of grapes. Like this. So student, you have seen whenever the things are in a collective form, whenever the things are in a collection, so that is called the collective noun. The last one is left, the abstract noun. The abstract noun are such type of the noun that we cannot touch, that we cannot see, but we can only feel that. So the very live example for you, whenever you sit in the class, so you can count different types of the abstract noun by your surroundings. Whenever you see, so whenever you are sitting in the class, so how many types of the abstract nouns are there? Suppose that you are sitting in a class and you are studying, the teacher is teaching you, and you are sitting. So at that time, what you see? Suppose that you are not paying attention in the class. You are not paying attention in the class. You are not attentive in the class. So at that time, teacher points you out. Teacher points you out by throwing a chalk on your shoulder, on your head, and he just said to you, just pay attention towards your class. So at that time, what is the word? Attention. Attentive is a word. You must be attentive in the class. Attentive is your adjective, but the attention. What is attention? Attention. That is the concentration. You cannot touch it. You cannot see it, but you can feel it. So this is your noun. And one more example, that some boy is very intelligent, some boy is very foolish. So if someone is intelligent, it means that
person has intelligence in himself or herself. It means that person has intelligence on himself or herself. So it means to say intelligence. Intelligence is abstract noun because you cannot touch it, you cannot see it, but you can only feel the presence of that into your body. You can feel the presence of that thing into your body. That is your abstract noun. Suppose that your class is very long, your class is very high, and your class is very wide. These three things are used for the structure of the class. So white, what is white? This is your adjective high, this is your adjective, and long, this is your adjective. But what are the abstract noun of all these things? What are the abstract noun of all these things? The abstract noun of all these things are long, length, wide, width, and height. So these are the abstract nouns. So you have come to know the noun, and the remaining parts, say 7 remaining parts are here. So we will discuss them in our next class, and I hope so that you have got very well. That's enough for you today. Thank you, and have a nice day to you all. Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Today we will continue the chapter number 2, क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शुद्ध हैं. In this chapter, इसके पहले की वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं कोलाइड क्या होता है, विलयन क्या होता है और निलंबन क्या होता है. ठीक है, कोलाइड, विलयन और निलंबन, और तीनों की कंपैरेटिव स्टडी भी कर चुके थे कि विलयन में कणों का साइज क्या होता है, कोलाइड में कणों का साइज क्या होता है, निलंबन में क्या होता है, और तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारे कुछ हम लोग पढ़ चुके थे. तो आज हम इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इसके बारे में बच्चों बात करेंगे. तो सबसे पहली बात ये देखिए कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है, उसको समझते हैं हम लोग. देखो, भौतिक का मतलब फिजिकल चेंज क्या होते हैं, ये ऐसे चेंज होते हैं, इस तरीके के परिवर्तन होते हैं ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं. यानी कि ये परिवर्तन होने के बाद कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा. और ये परिवर्तन कैसे होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं. यानी कि एक बार अगर ये परिवर्तन हो जाए तो ये टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर उसके बाद वो अपनी पुनः अवस्था में आ सकता है. भौतिक प्रकरण के द्वारा हम उसको पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं, भौतिक प्रकरण के द्वारा. अब देखिए इसका एग्जाम्पल, पंखे का चलना. पंखा कैसे चलता है, मान लीजिए आप लाइट आ रही है, आपने स्विच ऑन किया तो पंखा चलने लगा. ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ. कैसे, क्योंकि पंखा अगर आप स्विच बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, तो क्या पंखा पुनः उसी अवस्था में नहीं आ जाएगा, आ जाएगा. सो दैट इज व्हाई एक ऐसा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ. और कैसा हुआ, अस्थायी हुआ, क्षणिक हुआ, थोड़ी देर के लिए हुआ. जब आपने वो चेंज किया तभी हुआ. उसके बाद मोम का पिघलना. भाई मोम पिघल रही, उसके बाद अगर आप वो ठंडा हो जाता है, जब मोम पिघलने के बाद, तो क्या वो फिर से मोम नहीं बन जाता, जब नहीं जाता. तो दैट इज व्हाई ये भी किसका एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का. उसके बाद देखिए रबर का खींचना. रबर का खींचना, मान लीजिए रबर बैंड है, उसको आप खींचते हो, स्ट्रेच हो जाती है ना, वापस अगर छोड़ते हो तो फिर से वो अपने इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है. तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, रबर का खींचना एग्जाम्पल है आपका भौतिक परिवर्तन का. दूसरी बात देखो, बल्ब का चमकना. अब बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है, आपने स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो करने लगा, तो स्विच ऑफ कर देंगे, बल्ब बंद हो जाएगा. तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हो गए, भौतिक परिवर्तन के. ये कैसे परिवर्तन होते हैं, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है बच्चों. दूसरी बात, ये अस्थायी होते हैं, क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं, और भौतिक प्रकरण के द्वारा पुनः उसी अवस्था में ले ला सकते हैं. अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की. तो देखो, रासायनिक परिवर्तन जैसा कि नाम बता रहा है, ये रासायनिक है, ये केमिकल है. तो इसमें देखो, ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें नया पदार्थ बनता है. यानी रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें नया पदार्थ बनेगा. और जैसे इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा था, लेकिन इसमें नया पदार्थ बनता ही बनता है. ये कैसे परिवर्तन होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं. लेकिन ये कैसे परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन होते हैं. ठीक है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, इसमें नया पदार्थ बनेगा. ये अस्थायी परिवर्तन है, ये स्थायी परिवर्तन होता है. यानी एक बार अगर चेंज हो गया तो वो स्थायी रहेगा, स्टेबल रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा. तो ये स्थायी परिवर्तन है, और इसको हम पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं, चाहे आप कोई भी एफर्ट लगा लीजिए, कोई भी भौतिक या फिजिकल रासायन.
क्रम कर लीजिए, इसको पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल देखो, खाना पकाना। अब मान लो खाना पक गया एक बार, तो क्या उसको कच्चा बना सकते हैं, कच्चा कर सकते हैं? नहीं। सब्जी एक बार अगर लौकी की बन जाती है तो क्या वो कच्ची लौकी आपको दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो दैट इज व्हाई ये एग्जाम्पल किसका है? रासायनिक परिवर्तन का। पहले सब्जी कच्ची थी, फिर आपने बना दी, पका दी, तो नया पदार्थ बन गया ना। और स्थायी हुआ, एक बार पक जाती है तो क्या वो फिर चेंज हो जाती है? नहीं होती, स्थायी होता है और दोबारा हम उसे उस अवस्था में ला भी सकते हैं। अब देखो, दूध से दही का बनना, दूध रखा आपने, दही बन गया, ठीक है, तो ये नया पदार्थ बनाना, दूध था, दही बना, नया पदार्थ हो गया, ठीक है ना। और स्थायी हुआ, एक बार दही बन गया, दोबारा दूध मिलेगा आपको? नहीं मिला, पुनः उसी अवस्था में हम उसे ला नहीं पाए। उसके बाद लकड़ी और कागज का जलना। अब मान लो लकड़ी को जलाया आपने, तो जब आपने लकड़ी जलाई तो वो आपको मिला क्या? कोयला मिला ना। तो कोयला कैसा होता है? क्या वो लकड़ी है? नया पदार्थ मिला, कोयला, ठीक है। और स्थायी, एक बार कोयला बन गया तो क्या वो दोबारा लकड़ी की शक्ल लेगा? नहीं लेगा, तो ये स्थायी हुआ। दूसरी बात, पुनः हम उसको उसी अवस्था में नहीं ला सकते। भाई कोयला बन जाए तो लकड़ी हम नहीं बना सकते। फिर अगर आप कोयले को बर्न कराओगे, फिर जो नया पदार्थ बना है अगर आप उसको जला दोगे तो फिर वो क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। जैसे आप देखो, कागज को अगर जलाओगे तो क्या वो दोबारा वापस से आपको कागज की तरह दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, वो नया पदार्थ बन जाएगा जिसका नाम होगा राख, ऐश। और स्थायी होगा, एक बार राख बन गई तो बन गई, क्या दोबारा कागज मिलेगा? नहीं, तो पुनः उस अवस्था में भी नहीं हम ला सकते, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? उसके बाद देखो, फलों का पकना। अब मान लीजिए एक बार फल पक गया, एक बार आम पक गया, तो क्या वो कच्चे में बदल सकता है? नहीं बदल सकता। तो कच्चे आम से पका आम तो नया पदार्थ हुआ। दूसरी बात, स्थायी हो गया, पक गया तो पक गया, फिर कच्चा तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, हम उसे पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। और लोहे में जंग का लगना। अब मान लीजिए लोहे की कोई वस्तु है, उसमें अगर एक बार जंग लग जाती है बेटा, तो फिर वो नए जैसी नहीं हो सकती। फिर वो मतलब अब जंग लग गई तो लोहा जो है धीरे धीरे खराब होने लगता है। फिर वो एक बार जंग लग जाती तो लगती रहती है, फिर वो खराब होके, डैमेज होके, कोरोडेड होके गिरता रहता है, ठीक है। तो लोहे में जंग का लगना, नया पदार्थ जंग उस पे आ जाती है और फिर वो लोहा नए जैसा नहीं रहता है, वो पुराना हो जाता है और उसमें खराबी आ जाती है, वो उसकी तरह फंक्शन भी नहीं करता है, ठीक है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है आयरन के ऊपर, ऑक्सीजन आके जुड़ जाती है नमी के और उसके संपर्क में रहने से इस वजह से उसमें जंग लग जाती है। तो स्थायी परिवर्तन है और उसको भी हम पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते। तो हमने क्या पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन, भौतिक यानी फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता और ये कैसे होते हैं? टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए होते हैं। और अगर हम इसको फिजिकल कोई प्रोसेस करें तो उसको हम पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं। पंखा चल गया, मोमबत्ती पिघल गई, ठीक है, रबर का खींचना, बल्ब का चमकना, ये सारे एग्जाम्पल आपके हो गए भौतिक परिवर्तन के। दूसरी बात, रासायनिक परिवर्तन क्या है? इसमें नया पदार्थ बनेगा, ये स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, केमिकल चेंज, नया पदार्थ भी बनता है और इसको दोबारा उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे खाने का पकना, दूध से दही का बनना, लकड़ी और कागज का जलना, फल का पकना, लोहे में जंग का लगना। ये सारे एग्जाम्पल आपके हो गए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल क्या है, बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज की इस क्लास में बच्चों इतना, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। इसी क्लास के लिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम न्यूटन का प्रथम नियम देखते हैं, न्यूटन का फर्स्ट नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यदि कोई किसमें है? विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में रहेगी, क्लियर। और यदि कोई गति अवस्था में, मीन्स किसमें है? गति अवस्था में, तो वह गति अवस्था में रहेगी। तो मैंने बताया कि विराम अवस्था में कब तक थी? जब तक इस पे कोई बाबल नहीं, जैसे ही बाबल लगाया वैसे किसमें आ गया? ये गति अवस्था में आ गया। ये किसमें थी? गति अवस्था में। तो ये वस्तु आगे जा रही है, जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन पे लगाया वैसे क्या आती है? विराम अवस्था में। तो बिना बल के किसी वस्तु की अवस्था चेंजमेंट नहीं की जा सकती है। अगर किसी वस्तु की अवस्था चेंजमेंट हो रही है तो उस पर बल कार्य करेगा। ये किसने नियम दिया था? न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में बताया था। तो इसका प्रथम नियम क्या हो गया? यदि कोई वस्तु, सिंपल है, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी और यदि गति में है तो वो गति में रहेगी।
जब तक उस पर कोई बाहुबल कार्य ना करे, जब तक वह कोई बाहुबल कार्य करके उसकी अवस्था चेंजमेंट ना करे, जब तक उस पर कोई बाहुबल कार्य करके उसकी अवस्था में चेंजमेंट नहीं करता है, तब तक वस्तु किसमें रहती है, किसमें रहती है, अपनी अवस्था में, अपनी वर्तमान अवस्था में रहती है। किसमें रहती है, जैसे पहले विराम में थी वो विराम में रहेगी, और वर्तमान के बाद जो इसकी भविष्य में होने वाली है वो कौन सी हो गई है, फ्यूचर में गति अवस्था। तो बल लगने के बाद अभी किसमें है, ये गति में। जैसे ही फोर्स लगाया किसमें आ गई है, विराम में। चलिए, ये आपका न्यूटन का प्रथम नियम हो गया। सिंपल से मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताइए, कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, जब तक कोई उस पर बाहुबल कार्य करके उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना करे। अगर कोई वस्तु किसी वस्तु की वर्तमान अवस्था में लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है तो उसकी अवस्था विराम से किसमें चली जाएगी, गति में। अगर गति में है तो विराम में, विराम में है तो गति में। इस तरीके से, क्योंकि दो ही अवस्था होती है। सिंपल से बता दूं, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती, मतलब विराम और गति अवस्था नहीं जानते, अगर किसी वस्तु की विराम अवस्था क्या होती है तो मैं बता दूं, किसी वस्तु की विराम अवस्था वो अवस्था होती है जिस पर कोई वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है, अपनी वर्तमान अवस्था को परिवर्तित नहीं करती है, उस अवस्था को हम विरामावस्था कहते हैं, रेस्ट पोजीशन। नाउ अब आते हैं मूविंग पोजीशन। मूविंग पोजीशन क्या होती है, गति अवस्था। जब कोई वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था मीन्स जब कोई वस्तु अपने विचाल से गति में, स्थिति में लगातार क्या कर रही है, परिवर्तन कर रही है, अपनी वर्तमान अवस्था में क्या करती जा रही है, परिवर्तन करती जा रही है विचाल से, तो इस अवस्था को हम गति अवस्था या मूविंग पोजीशन कहते हैं। नाउ अब देखते हैं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहुबल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इस नियम को न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में सिर्फ यही बताया था कि यदि कोई विराम में है तो उसकी अवस्था चेंजमेंट करने के लिए उस पर बाहुबल लगाया जाएगा, यदि कोई वस्तु गति में है तो उसकी अवस्था चेंजमेंट करने के लिए बल लगाया जाएगा, बिना बल के उसकी अवस्था चेंजमेंट नहीं होगी। देखिए, नोट कर लीजिए तक। चलिए आते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम। जैसा कि मैं आपको बता दूं, न्यूटन का प्रथम नियम मैंने आपको बता दिया, वैसे ही न्यूटन का सेकंड लॉ है न्यूटन का द्वितीय नियम। उन्होंने अपने द्वितीय नियम में भी बल के बारे में बताया है, पहले नियम में बल के बारे में बताया था, सेकंड में बल के बारे में बताया। अब यहाँ पर बल का परिमाण कैसे निकालते हैं, किन बातों पर वो निर्भर करता है, किसके अनुपाती होता है। कि मीन्स सपोज है, आपने एक चीज देखी होगी, जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा स्टोन है, अभी इसका द्रव्यमान 2 kg है। कितना है, 2 kg। अगर इससे हम किसी की ओर थ्रो करते हैं तो उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है, क्या करता है, फोर्स। तो जैसे उस पर एक बल अप्लाई करेगा तो उस बल के अकॉर्डिंग जितना उस पर मास होगा वो किसी ऑब्जेक्ट पर उतना ही बल लगाएगा। मीन्स अगर इसी स्टोन को अगर हम 100 kg कर दें, कितना कर दें, 100 kg कर दें, और इसको एक त्वरण से हमने थ्रो किया था, इसको भी एक त्वरण से थ्रो करते हैं, तो बताइए किससे बल ज्यादा लगेगा, इस 100 kg वाले से या 2 kg वाले से। अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा है, त्वरण दोनों के सेम है, अभी हमने त्वरण आपके नहीं बदले, जो स्पीड है फेंकने की वो स्पीड क्या है, सेम है, बट इसका मास कितना है, 2 kg, इसका मास कितना है, 100 kg। तो आप बताइए किससे बल ज्यादा लगेगा। जब ये इस व्यक्ति के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर जाके गिरेगा, मान लेते हैं ये हमारे पास राम, तो जब इनके ऊपर फोर्स लगेगा राम के ऊपर, तो बताइए किस स्टोन से लगेगा, स्टोन फर्स्ट से या स्टोन सेकेंड से। स्टोन सेकेंड का वेट कितना है, मास कितना है, 100 kg, इसका मास कितना है, 2 kg। तो 100 kg का मास क्या होगा, ज्यादा, और उसका फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा। मीन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का हम द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो उसका बल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से पता चलता है जो फोर्स होता है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती, कैसा होता है,
अनुक्रमानुपाती। बट अगर मान लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उसी तरीके से लेकर के, मान लीजिए हमने अभी मास नहीं बढ़ाया, मास कांस्टेंट कर दिया, अब हम मास नहीं बदलेंगे, त्वरण बदलेंगे। मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्टोन है जिसका द्रव्यमान कितना है 2 kg। स्टोन हमारे पास, ये स्टोन हो गया A, और एक और स्टोन है स्टोन B, इसका भी मास कितना है 2 kg। अब दोनों का मास 2 kg। अगर सेम मास वाले ऑब्जेक्ट को सेम त्वरण से फेंकेंगे किसी के ऊपर तो फोर्स अप्लाई करेगा। क्या करेगा? फोर्स। जैसे मान लो ये स्टोन हमारे हैंड पे गिरता है तो एक फोर्स अप्लाई करता है, तो जैसे इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा तो दोनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि जब इसको थ्रो किया तो हमने A त्वरण से किया और इसको भी थ्रो किया तो हमने त्वरण A से किया, तो दोनों के मास सेम है, त्वरण सेम है, तो बल के मान भी क्या होंगे? दोनों के सेम। बट अगर मास, अभी हमने मास बदला था, अब हम क्या बदलते हैं? त्वरण। अगर सपोज है त्वरण का मान हमने 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पहले फोर्स अप्लाई किया, क्लियर? उसी तरीके से सेकेंड त्वरण हमने ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण कौन सा जाता है? ऑब्जेक्ट A का त्वरण क्या होगा? ऑब्जेक्ट कैपिटल A का त्वरण कितना होगा? 4 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट B का कितना होगा? 2 किलोग्राम मास है और त्वरण कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। त्वरण किसका जाता है? ऑब्जेक्ट B का। तो जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे आराम से फेंको, उसी ऑब्जेक्ट को तेजी से फेंको तो फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जब वो स्पीड से आएगा तो उसके वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा और त्वरण का मान क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से डिसाइड होता है कि त्वरण का मान बढ़ाने से किसी ऑब्जेक्ट पे तो मास बढ़ा दो तो बल का मान बढ़ जाता है। यदि उसका त्वरण का मान भी लगातार बढ़ाते जाओगे, पहले हमने धीरे से शुरू किया, फोर्स लगा, फिर उसको तेजी से फेंक के मारा और फिर और तेजी से फेंक के मारा, ऑब्जेक्ट तो नहीं बदल रहा। जैसे एक बॉल लिया, बॉल का द्रव्यमान सेम है, उसको हमने बॉल पे मारा या सामने किसी व्यक्ति को मारा, ठीक है? अब उसको फोर्स अप्लाई हुआ, फिर उसी को और कस के उसी बॉल को फेंक के मारा, क्या द्रव्यमान चेंज हुआ? नहीं, द्रव्यमान वही है लेकिन स्पीड चेंज हो गई। फिर मैंने और खींच के मारा तो उसको और स्पीड चेंज हुई, तो फोर्स और ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे, उसकी वेग में परिवर्तन करेंगे तो त्वरण आएगा। त्वरण का मान जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएगा, बल का मान भी वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। तो टॉपिक पे आते हैं कि जो बल होता है वो त्वरण के अनुपाती होता है। बस यहीं से डिसाइड हो गया कि जो बल है वो द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान और बल की दिशा में, मीन्स अगर किसी वस्तु पे बल लगाते हो तो वस्तु कहाँ जाती है? बल की दिशा में गति करती है। तो उसमें त्वरण किस दिशा में आया? बल की दिशा में आया। किस दिशा में आया? बल की दिशा में। सपोज है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक ऑब्जेक्ट का मैं एक पार्ट, चौक का एक पार्ट लेता हूँ, इस पे फोर्स अप्लाई करता हूँ। वो ऑब्जेक्ट मैंने फोर्स कहाँ किया? फ्रंट साइड। ऑब्जेक्ट भी कहाँ गई? फ्रंट साइड। मीन्स जब किसी वस्तु पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन पर ही क्या होगी? गति करेगी। उसमें त्वरण भी बल की दिशा में आएगा। तो मीन्स वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल का मान बल में क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे हम बल दिखाते हैं F इक्वल टू, फॉर्मूला हो गया द्रव्यमान इनटू त्वरण। इसको बता सकते हैं हम, बल बराबर वस्तु का द्रव्यमान वस्तु की गति की दिशा, वस्तु की बल की गति की दिशा में त्वरण। क्लियर? तो जो हमारा बल होता है, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु की गति की दिशा में त्वरण, ये गुणनफल के क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। तो वही लिखा हुआ है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु की बल की दिशा में, उस वस्तु की बल की दिशा में, मतलब कि बल लगाया है तो वस्तु अगर इस दिशा में गति कर रहा है तो बल की दिशा भी इधर होगी। अगर वस्तु इस दिशा में गति कर रहा है तो बल की दिशा इसी में होगी। सपोज दैट अगर आपके सामने से कोई बॉल ऐसे जाती है तो आपको बताइए, जैसे मान लो एक फुटबॉल है, हमारे सामने से इस साइड निकल गई, तो बताइए उसे बल किस दिशा में दिया गया? इसी दिशा में किया।
फिर अगर एक फुटबॉल तेजी से ऐसे निकल जाती है तो उसे बल की दिशा में दिया गया। इस दिशा में अगर बॉल हमारी जो है फुटबॉल सामने की ओर आ रही तो बल किस दिशा में दिया गया, सामने की ओर। वस्तु की गति की दिशा जिस ओर होती है उस पर लगाया गया बल की दिशा भी उसी ओर होती है। ठीक है, तो जो द्रव्यमान है और त्वरण के गुणनफल के अनुपाती होता है। चलिए नोट कर सकते हैं। जैसा कि न्यूटन ने अपने तृतीय नियम में बताया, सेकंड नियम भी हो गया, बल का फॉर्मूला था, और तृतीय नियम होता है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर या विपरीत दिशा में, परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल कार्य करती है। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट, इस पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जैसे आप फोर्स उस पर अप्लाई करते हो तो आपके हैंड के अकॉर्डिंग इस बोर्ड पर एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप देखते हो कि आपके हाथ पर पेन होता है ना, तो हाथ पर पेन होता है तो फोर्स तो हमने इस पे अप्लाई किया, हैंड पर क्यों पेन हुआ? आपको पता होना चाहिए जो हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया वो हमारी क्रिया थी, मीन्स क्या था, एक्शन। और जितना उस पर हम एक्शन लेते हैं उसके बराबर विपरीत दिशा में एक फोर्स कार्य करता है। जैसे हमने इस पे फोर्स लगाएंगे तो हम 2 न्यूटन का लगाएंगे तो 2 न्यूटन का लगेगा, उधर से भी मेरे हैंड पर भी। अगर मैं 3 न्यूटन का लगाता हूं तो मेरे हैंड में 3 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई होगा। अगर मैं 10 न्यूटन का लगाता हूं तो मेरे हैंड में 10 न्यूटन का। अगर मैं 100 न्यूटन का लगाता हूं तो आपको पता है ना 100 न्यूटन, 100 अमाउंट हो गया, न्यूटन आपका बल का मात्रक है। मीन्स अगर बल को शो करना है तो मात्रक, इससे आप कोई भी चीज लेकर आते हो, ग्रोसरी वगैरह, तो क्या होता है केजी में लेके आते हैं, 10 केजी, वेजिटेबल वगैरह केजी में लेकर आते हैं, तो उनका जो मात्रक होता है वो केजी और ग्राम में होता है, बट जो बल का मात्रक है वो न्यूटन में। इस तरीके से मैंने 200 न्यूटन लगाया। कितना लगाया? 200। तो बताइए जैसे मैं बोर्ड पे 200 फोर्स लगाऊंगा तो मेरे हैंड में बोर्ड से अपोजिट डायरेक्शन पर एक फोर्स अप्लाई होगा, वो कितना होगा? बराबर 200 न्यूटन तो 200, अगर 100 न्यूटन तो 100, 1000 न्यूटन तो 1000, बट डायरेक्शन दोनों की क्या होगी? उल्टी हुई। मेरी डायरेक्शन कहां जा रही है? इनवर्ड, इसकी डायरेक्शन कहां रही है? आउटवर्ड। तो आपको जो क्रिया और प्रतिक्रिया मीन्स एक्शन और रिएक्शन, क्रिया को इंग्लिश में एक्शन बोलते हैं, प्रतिक्रिया को रिएक्शन। जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन सेम होता है, दोनों कैसे होते हैं? बराबर, बट डायरेक्शन उनकी क्या होती है? अपोजिट होती है। तो बस वही लिखा है इसमें। प्रत्येक क्रिया की जो भी क्रिया करते हो, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा, प्रत्येक क्रिया की बराबर होगी परंतु विपरीत दिशा में। ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है, दोनों हैं बराबर लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। क्लियर? आप समझ गए? मैं एक साथ दोनों को रिपीट करता हूं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ बाय एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट लॉ में अगर कोई ऑब्जेक्ट विराम में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसमें है? गति में। ये किसमें है? गति में। और ये ऑब्जेक्ट किसमें है? विराम। तो ये विराम से गति में लाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? बल। गति को विराम में लाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? बल। तो दोनों ही, अगर हमने विराम को किसमें ले गए? गति में, और गति को किसमें ले जाना है? विराम में। तो इस तरह अवस्था बदलने के लिए हमें एक बाहुबल चाहिए, यही न्यूटन का प्रथम नियम है। सेकेंड लॉ, न्यूटन ने बताया कि जब किसी ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट के द्वारा बल लगाया जाता है तो वस्तु का द्रव्यमान और उसका बल की दिशा में त्वरण का गुणनफल बल के अनुपाती, द्रव्यमान बल की दिशा में त्वरण का गुणनफल। देखिए ना, वस्तु का द्रव्यमान बल की दिशा में वस्तु का त्वरण का गुणनफल बल के अनुक्रमानुपाती होता है, जिससे फॉर्मूला बनता है F बराबर ma, बल का मात्रक न्यूटन, SI यूनिट में होता है, और सीजीएस में डाइन होता है, और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। अब आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ। व्हाट इज न्यूटन का थर्ड लॉ? तो न्यूटन का थर्ड लॉ, इफ एनी पर्सन आस्किंग यू व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ,
तो आप बता सकते हैं कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, वो अगर कोई भी आपसे अगर पूछता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, तीसरा नियम क्या है, तो आप बता सकते हैं प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर और विपरीत दिशा में होती है। जो उसकी प्रक्रिया होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में होती है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। क्लियर, समझ गए? ठीक है, राइट। और मैं आपको बता दूं, चैप्टर फिनिश्ड होने के बाद आपको SUI की तरफ से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बट आप अभी इन सब चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए अपने रफली वर्क कर सकते हैं और आपको सारे नोट्स शिवाजी से प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग जब प्रोवाइड होंगे तो आपके ग्रुप में इंफॉर्मेशन आएगी और परेशान नहीं होना है। आपको रफली वर्क करके प्रैक्टिस करते जाना है चैप्टर की, और आपको पूरा चैप्टर जेरॉक्स में टाइप के अनुसार मिलेगा। क्लियर? और उसकी इंफॉर्मेशन वो कब मिलेगा, वो आपको आपके ग्रुप में दे दिया जाएगा। गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है, पिछले टर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर के टाइप्स। उसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स। ये होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जाएंगे। माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रोसेसर होता है, और ये जो हमारा प्रोसेसर होता है ये सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर इसका मतलब है इसका आकार बहुत सूक्ष्म होता है। ये सिस्टम जो है वो हमारे डेस्कटॉप, कॉमटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, पॉकेट पीसी, PDA और प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स के और कैलकुलेटर्स के फॉर्म में आते हैं। तो ये कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इनमें हमारी रैम होती है, रोम होती है और साथ ही साथ सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिनका हम लोग यूज़ करके हम लोग अपने इंस्ट्रक्शंस को इनपुट कराते हैं। इनपुट कराने के बाद हमारे इंस्ट्रक्शंस को ये प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट देता है। तो ये हमारे बहुत यूज़फुल कंप्यूटर होते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स हम लोग आसानी से कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं और इनको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इनका प्रयोग हम लोग ऑफिसेज में, घरों में और साथ ही साथ कहीं भी ले जाकर इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें इनपुट डिवाइस के रूप में हम लोग कीबोर्ड, माउस तथा आउटपुट डिवाइस के रूप में हम लोग मॉनिटर, प्रिंटर आदि का प्रयोग करते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हम लोग माइक्रो कंप्यूटर्स में विंडोज़ का, डॉस का और लाइनेक्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो माइक्रो कंप्यूटर होता है इसमें CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी हमारी 3 भागों में डिवाइड होती है। वो हमारी होती है ALU, CU और MU। ALU में क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होती है, जहाँ पे हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन रन कराते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और यहाँ पे जो इसके सर्किट्स होते हैं वो होते हैं एडर, सब्ट्रैक्टर, कंपरेटर। और फिर होती है हमारी CU, कंट्रोल यूनिट। इसमें बसेस होती हैं। बसेस क्या करती हैं, डेटा को ले जाती हैं और लाती हैं। यानी बसेस जो होती हैं वो 64 बिट की हो सकती हैं, 128 बिट्स की हो सकती हैं। तो ये उतना ही डेटा एक बार में ले जाती हैं और लाती हैं। तो 3 प्रकार की बसेस होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ये बसेस जो है डेटा को एक जगह से लाती हैं और ले जाती हैं। तो ये है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। अब हम लोग बात करेंगे मिनी कंप्यूटर्स की। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में थोड़े से बड़े होते हैं। इनका प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग वर्क करते हैं, यानी इसमें डिफरेंट टर्मिनल्स होते हैं, अलग अलग टर्मिनल पे लोग वर्क करते हैं। ये कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की तुलना में। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स। इनका प्रयोग हम लोग बिजनेस में, लेबोरेटरीज में, हॉस्पिटल्स में, और क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा टर्मिनल होते हैं तो एक से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं लोग,
तो इनका प्रयोग ऐसी जगहों पे किया जाता है जहाँ एक से ज़्यादा लोग वर्क करते हैं। तो ये जो कंप्यूटर हैं इनकी कैटेगरी जो है माइक्रो कंप्यूटर से भिन्न है और ये स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स माने जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में। इनके एग्जाम्पल है PDP 11 और IBM की कुछ सीरीज आई थी जो मिड रेंज के कंप्यूटर्स माने जाते थे, इन्हें मिनी कंप्यूटर्स कहा गया। तो मिनी कंप्यूटर्स के बारे में आपको पता चल गया और ये वर्क करते हैं 16 बिट पे, 32 बिट पे और 64 बिट पे। अगला आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो ये माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से अच्छे माने जाते हैं। ये भी मल्टी यूजर सिस्टम है, यानी मल्टीपल यूजर एक साथ वर्क कर सकते हैं। कैपेबल होते हैं हैंडलिंग करने में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा जहाँ पर यूज़ हो रहा है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, जहाँ बहुत बल्कि डेटा होता है उसको हैंडल करने के लिए हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। ये एज ए सर्वर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और बड़ा डेटाबेस जहाँ पर क्रिएशन होता है, जहाँ पर हम लोग DBMS, RDBMS, SQL, ओरेकल, जहाँ पर पावरफुल टूल्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। ये हमारे 32 बिट और 64 बिट पर भी वर्क करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए बहुत महंगे होते हैं। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो किसी एक आदमी इसको मैनेज नहीं कर सकता। तो ये कंप्यूटर जो होते हैं, क्योंकि इनका वर्क भी बहुत डिफरेंट होता है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ वर्क कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग, मल्टीपल टास्क एक साथ हम लोग करा सकते हैं, साथ ही साथ बैच प्रोसेसिंग करा सकते हैं। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, डिफरेंट जॉब जो होती हैं उनके अलग अलग बैच बनाए जाते हैं और अलग अलग बैच बनाकर जो सिमिलर बैच होते हैं उनको एक साथ प्रोसेस किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, यानी एक ही समय में कई सारे प्रोसेस को एक साथ हम लोग करा सकते हैं। इनका प्रयोग जो है वेदर फोरकास्टिंग, फ्लूइड डायनामिक्स, साइंटिफिक एप्लीकेशंस, न्यूक्लियर एप्लीकेशंस, ऐसी जगहों पे किया जाता है जहाँ पे जो अगर हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो बहुत वास्ट कैलकुलेशन होती है, तो उसकी कैलकुलेशन की जो स्पीड होती है वो फ्लॉप्स में होती है। तो सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इनका उपयोग एज ए सर्वर भी किया जाता है जहाँ पर हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिट्राइव करा सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वैल्यूएबल एंड द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज वेरी हाई टू कंपेयर ऑल द कंप्यूटर्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं और सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर की बात की थी हम लोगों ने। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। डॉस जैसे होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपका विंडोज हो गया, तो ये सब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। डेस्कटॉप आते हैं, रेक माउंट आता है जिसमें KVM स्विच होता है जिससे हम लोग कंसोल गेम कर सकते हैं। कारों में लगे रहते हैं जिनको कारपोर्टर्स कहते हैं, गेम कंसोल के लिए यूज होते हैं। लैपटॉप्स होती हैं, नोटबुक होते हैं, पावर PCs होते हैं, टैबलेट होते हैं और आपकी बुक्स होती है, मैकबुक होती है। तो ये सारे जो हैं कॉमटॉप होते हैं। तो इन सारे कंप्यूटर्स की जो श्रेणी है वो माइक्रो कंप्यूटर्स में आती है। इजीली हम लोग कहीं भी इसको ले जा सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें मिनी कंप्यूटर्स की, तो ये बताया था दे आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स। दे कैन यूज वेयर मल्टीपल यूजर कैन वर्क, जहाँ पे बहुत सारे यूजर वर्क करते हैं, और ये बहुत पावरफुल नहीं होते हैं लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से पावरफुल होते हैं। इनका प्रयोग हम लोग स्मॉल बिजनेस में कर सकते हैं, लेबोरेटरीज में कर सकते हैं, अपने हॉस्पिटल्स में इनका यूज़ कर सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या है, हमारे PDP 11 और IBM की सीरीज जो है वो इनके एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। तो मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं, कैपेबल होते हैं हैंडलिंग करने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट का डेटा। इनका यूज़ होता है गवर्नमेंट के फील्ड में, बैंक्स में, और इनकी स्पीड जो होती है वो MIPS होती है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये सिस्टम जो होते हैं ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स और मिनी कंप्यूटर्स की तुलना में। ये जो है ये पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ये मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। और तो इनका यूज हम लोग ऐसे जगहों पे करते हैं जहाँ पर लार्ज अमाउंट में डेटा आता है, जहाँ पे हम लोग बड़े डेटाबेस को हैंडल करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। इसे फॉल्ट टॉलरेंस कंप्यूटर कहते हैं। इनका प्रयोग वेदर फोरकास्टिंग में, फ्लूइड डायनेमिक्स में, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में, न्यूक्लियर एप्लीकेशंस में,
ऐसी जगहों पे किया जाता है जहाँ पे बहुत लंबी लंबी गणनाएं होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं। इसीलिए इनमें पैरेलल प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कई सारे डिफरेंट जॉब जो होते हैं उनकी कैटेगरी बना के उनको बैच के फॉर्म में हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टर्न पे और आगे पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। थैंक यू क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? 5 जगत वर्गीकरण और वर्गीकरण की आवश्यकता। तो 5 जगत वर्गीकरण में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि जो कोशिका की संरचना थी वो कैसी थी? यूकेरियोट भी हो सकती है, प्रोकैरियोट भी हो सकती है। न्यूक्लियस कैसा हो सकता है? यूकेरियोटिक भी हो सकता है, प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है। और एनिमल की बॉडी कैसी हो सकती है? यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया किसने था? आर.एच. व्हिटेकर नाम के वैज्ञानिक ने 1969 में। इन सभी विभिन्नताओं के साथ हम लोगों ने और क्या पढ़ा कि जात वृत्ति क्रम भी उसका हमें पता होना चाहिए। और अध्ययन में सुविधा क्या थी कि हमें उसका जैव विकास प्रमाण मिलता है, उसके अनुकूलन में भी जो प्रमाण होते हैं वो भी सहायक होते हैं, जैसे कि कोई जीव कहाँ पे अपने आप को सबसे ज्यादा अनुकूलित रखता है, ये सब चीजें पता चली। और लिनियस ने क्या कहा था कि किंगडम जो होता है वो प्लांटी और एनिमल, यानी प्लांट और एनिमल के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। उसके अलावा क्या बताया गया कि जो प्लांट है उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन जो है वो स्वयं बना लेते हैं। और जो प्लांट में सेल्यूलोज की सेल वॉल पाई जाती है जो कि बहुत ही मजबूत होती है, जो क्या बताती है कि प्लांट को मजबूत बनाने का कार्य करती है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो एनिमल होता है उसमें सेंस बहुत ज्यादा होता है, सेंसिटिविटी पाई जाती है और उनके सेंस जो होते हैं प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। और एनिमल क्या करते हैं? लोकोमोशन भी कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। और जीवन की दिशा क्या थी कि प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या फिर डिकम्पोजर, यानी प्लांट है, एनिमल है या फिर फंजाई है या फिर कवक है। यानी कैसा है? अगर भोजन निर्माण कर रहा है तो क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। भोजन निर्माण करने मतलब ये नहीं कि कोई भी किचन में खाना बना है, ऐसा नहीं है। प्लांट की बात की जा रही है तो प्लांट क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, जिनपे सारे एनिमल्स डिपेंड होते हैं। और कंज्यूमर क्या होंगे? जो प्लांट्स को खाते हैं या फिर प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट था डिकम्पोजर, यानी जो प्लांट्स को खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको अपघटित करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ना है? वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण, यानी हम लोग क्या पढ़ना है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ना है। किसका? वनस्पति जगत का। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था एनिमल का क्लासिफिकेशन और आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट का क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने क्या किया? वो 1941 से 1942 में ओस्टवाल्ड टिप्पो, ये जो वैज्ञानिक थे, ने वनस्पति जगत का वर्गीकरण उनकी रचना, उनकी जनना, उनके जीवन चक्र के आधार पर किया। यानी ओस्टवाल्ड टिप्पो जो थे उन्होंने क्या किया? वर्गीकरण तो किया, लेकिन कैसे? उसकी मॉर्फोलॉजी देखिए, यानी प्लांट कैसा है, उसका जीवन चक्र देखिए। जीवन चक्र का मतलब होता है प्लांट जब से आता है धरती पे, उगता है और उसके बाद जब तक वो रहता है, जब तक वो नष्ट नहीं हो जाता है, उस पूरी साइकिल को क्या बोलते हैं? जीवन चक्र। तो उसके जीवन चक्र जननांग, जननांग का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उन सभी को देख के इन्होंने क्या बनाया? वर्गीकरण का जो हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक वर्गीकरण। तो किसने किया था? ओस्टवाल्ड टिप्पो ने इसका वर्गीकरण किया। किसके आधार पे? रचना, जननांग, जीवन चक्र के आधार पे। और उन्होंने क्या किया? वनस्पति जगत को 2 उप जगत में बांट दिया। पहला क्या किया? थैलोफाइटा। दूसरा कौन सा था? एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब होता है थैलस। थैलस मतलब किसी भी एक जगह थक्के जैसा जम जाना, उसको बोलते हैं थैलोफाइटा। तो 2 जगत कौन कौन से? पहला था थैलोफाइटा, दूसरा था एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा समझ गए? एम्ब्रियोफाइटा का मतलब होता है, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। तो यहाँ पे क्या होगा? एम्ब्रियोफाइटा वो जो वाले जो प्लांट होंगे वहां पर जो भ्रूण होता है
जाइगोट से प्लांट का निर्माण होगा। यहाँ पर क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, उससे क्या होगा, जीव का निर्माण होगा यानी पौधे का जन्म होगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपजगत पहला कौन सा है, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा के जो प्लांट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि पौधों की रचना कैसी थी, बिल्कुल सिंपल थी। मतलब बहुत जो सबसे ज्यादा सिंपल जो फॉर्म होती है प्लांट की, उस तरह की जीवों की संरचना यहाँ पर प्लांट की संरचना पाई जा रही थी। और क्या था, क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे तो उनमें एक वैक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है उस लीफ के ऊपर, चिकना सा होता है और थोड़ा थिक होता है। वो क्या है, यहाँ पर एब्सेंट है, नहीं है। नेक्स्ट क्या था, अलैंगीकरण पाया जा रहा है, क्योंकि ये थैलोफाइटा है, एम्ब्रियोफाइटा तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, अलैंगीकरण पाया जाएगा, यानी पेरेंट जो होगा वो केवल एक होगा और जो एम्ब्रियो जो प्लांट आएगा वो क्या होगा, अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होगा। नेक्स्ट है, भ्रूण नहीं बनता। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि थैलोफाइटा है तो यहाँ पर भ्रूण का विकास नहीं होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से सीधे पौधा यानी युग्मनज बनेगा। युग्मनज क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन से पौधे का निर्माण कर देगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, शैवाल, कवक। तो याद रखने के लिए क्या है कि जो थैलोफाइटा होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, शैवाल और कवक के बारे में। नेक्स्ट क्या था, अब शैवाल क्या है, शैवाल हमें पता नहीं क्या है, तो शैवाल कहाँ पाई जाएगी, सबसे पहले ये जानते हैं कि नदी, तालाब, पोखर। आप लोगों ने देखा होगा तालाब में हरा हरा पानी हो जाता है या नदी में कहीं एक किनारे पानी इकट्ठा हो जाता है या फिर ऐसे ही बहुत दिनों तक कहीं भी पानी पड़ा रहता है तो वहां पर हरा हरा जो होता है उससे सरफेस आ जाती है, उसको हम लोग जनरली काई बोलते हैं। वही काई जो होती है वो शैवाल कहलाती है, एल्गी। तो कहाँ पाई जाएगी, नदी, तालाब और पोखर में। नेक्स्ट है पर्णहरित उपस्थित। मैंने अभी बताया ग्रीन कलर का होता है यानी वहां पर क्या पाया जाएगा, पर्णहरित उपस्थित। तो ये कैसा बिहेव करेंगे, प्लांट्स की तरीके। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। अगर यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो प्रकाश संश्लेषण भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है एक कोशिकी, बहुकोशिकी, यानी एक कोशिकी भी हो सकता है। एक कोशिकी का मतलब जो हमें दिखाई ना दे, जो माइक्रोस्कोपिक हो और एक सेल से बना हो, एक सेल में उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, वो क्या होते हैं, एक कोशिकी। तो ये क्या कह रहा है, एक कोशिकी हो सकता है और बहुकोशिकी मतलब जो बहुत सारी सेल से बना है और वो कंटिन्यू डिवीजन करता रहता है और अपने साइज को बड़ा कर लेता है। दूसरी चीज, अगर गाय हमें दिख रही तो इसका मतलब है वो क्या है, बहुकोशिकी है। नेक्स्ट है कोशाभित्ति सेल्यूलोज की बनी होती। अगर प्लांट है वो प्लांट की कैरेक्टर क्या होंगे, पहला तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, दूसरा क्या होगा कि सेल्यूलोज होगा वो सेलवाल में पाया जाएगा, और तीसरा क्या है कि कोशाभित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी है और एक कोशिकी भी है, बहुकोशिकी। और क्या है, ग्रीन कलर का है। तो ये कैरेक्टर प्लांट के तो है, तो सारे प्लांट के कैरेक्टर किसमें पाया जा रहा है, एल्गी में पाया जा रहा है। जैसे कि एनाबिना, डायटा, न्यूरोसिस। इस टाइप के आप किसी भी सवाल को देखोगे तो उसमें सारे कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्या है, उपजगत थैलोफाइटा को बहुत सारे फाइलम में बांटा गया। तो पहला फाइलम क्या है, साइनोफाइटा। आप लोगों को ये चीजें लर्न करके रखनी है और इनका एग्जाम्पल भी एक तो जरूर ही याद होना चाहिए। तो पहला क्या है, साइनोफाइटा। इसमें क्या आएंगे, नीले हरे शैवाल। शैवाल अभी हम लोगों ने पढ़े, उसमें क्या है, नीले हरे शैवाल आएंगे जिनमें क्या पाया जाएगा, अलैंगिक जनन। यानी शैवाल, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा में क्या हो रहा था, अलैंगिक जनन हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर भी क्या होगा, अलैंगिक जनन। और केंद्र क्या है, अनुपस्थित है, यानी केंद्र यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, ये क्या है, शैवाल के एग्जाम्पल, उनके नाम। नेक्स्ट क्या है, यानी हम लोग याद क्या करना है कि सब साइनोफाइटा में ये दो शैवाल आते हैं, नॉस्टॉक, एनाबिना। सेकेंड क्या होगा, यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा, इसमें क्या होगा, पीले और हरे शैवाल आएंगे, येलो और ग्रीन एल्गी आएगी। और क्या, कशाभिक का मतलब होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला अर्थात वो क्या करेगा, मूव करेगा, मूवमेंट करता है किसी भी चीज में, ठीक है। जैसे मैं किसी की बात करें, जैसे मान लो हम लोग किसी भी एनिमल की, ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, अगर यहाँ पर ये टेल पाया जा रहा है, ये टेल दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लैजिलम, ओके। तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला पाया जाएगा
एग्जाम्पल क्या होगा? यूग्लिना। यूग्लिना होगा एग्जाम्पल, इसीलिए इसका नाम क्या है? यूग्लिनोफाइटा। तो इसका एग्जाम्पल भी हो गया, क्लास फाइलम क्या हो गया? यूग्लिनोफाइटा, और एग्जाम्पल क्या हो गया? यूग्लिना। नेक्स्ट है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफिल क्या होता है? जो प्लांट में पाया जाता है और क्या करता है? प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो क्लोरोफाइटा में क्या हो जाएगा? क्लोरेला स्पाइरोगायरा। क्लोरेला स्पाइरोगायरा। और इसका क्या है? इसमें ग्रीन कलर की जो एल्गी है वो पाई जाएगी। नेक्स्ट है फंग क्राइसोफाइटा, यानी फाइलम क्राइसोफाइटा। आप लोगों को ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। क्राइसोफाइटा तो इसमें क्या है ना? पीला हरा शैवाल और सुनहरा भूरा शैवाल, ये दो कैटेगरी इसमें पाई जाएंगी। एग्जाम्पल क्या होगा? डायटम्स। क्या होगा? डायटम्स। नेक्स्ट है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा है तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा? सुनहरे भूरे शैवाल, और कैसे होंगे? एक कोश की होंगे। और एग्जाम्पल क्या होगा? जिम्नोडिनियम। क्या होगा? जिम्नोडिनियम। नेक्स्ट है फंग फियोफाइटा। फियोफाइटा क्या होगा? इसमें भी ब्राउन कलर की एल्गी होगी, बट कैटेगरी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्राउन जो है शैवाल है। एग्जाम्पल क्या हो गया? फ्यूकस। क्या हो गया? फ्यूकस। नेक्स्ट है रोडोफाइटा। रोडोफाइटा समझ में आ रहा है? रेड कलर की बात हो रही है। रोडोफाइटा यहाँ पर क्या कहा जाएगा? लाल शैवाल। इसका क्या है एग्जाम्पल? पॉलीसाइफोनिया। नेक्स्ट है साइजोमाइकोफाइटा। साइजोमाइकोफाइटा, इसमें क्या आएंगे? जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितनी बैक्टीरिया कैटेगरी होगी वो किसमें आएंगी? साइजोमाइकोफाइटा। एग्जाम्पल क्या होगा? बैसिलस विब्रियो, और बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। अब क्या है? कवक। कवक क्या है? जैसा मैंने बताया कि जितनी भी सड़ी गली चीजें होती है उसमें पाया जाए कि सड़ी गली रोटी, मुरब्बा, कुछ भी देखो, अचार कुछ भी देखोगे उसमें ये दिखाई देगी, अच्छे से दिखाई देती है। परजीवी होती है। परजीवी का मतलब होता है जो किसी की बॉडी में रहती है और उसको नुकसान पहुंचाए, उसका मतलब होता है परजीवी। यानी उससे वो पोषण लेती है, होस्ट बॉडी को वो पोषण लेती है उसका, और उसको क्या करती है? वीक कर देती है, उसको बोलते हैं परजीवी। तो ये क्या कर रही है? परजीवी का वर्क कर रही है। नेक्स्ट है कवक जाल पाया जाता है। जैसे आप नीचे डायग्राम देख रहे हो तो ये क्या करता है? जाल की तरह बना होता है, तो कवक जाल में पाया जाएगा। कोशिका भित्ति, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ा है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी और प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है लैंगिक अलैंगिक वर्ग। इसमें तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। लैंगिक का बात करें तो लैंगिक भी होता है। अलैंगिक क्या होगा? सुटेबल कंडीशन आने पर अलैंगिक जनन हो जाएगा, लैंगिक जनन हो जाएगा, और सुटेबल कंडीशन नहीं होगी तो अलैंगिक जनन हो जाएगा। जैसे आप लोग को नीचे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खूब सारे स्पोर्स भरे हैं, और जब सुटेबल कंडीशन आएगी तो ये स्पोरेंजियम क्या होगी? बस्ट हो जाएगी, यानी फट जाएगी, जो सीड्स होते हैं वो गिर जाएंगे। नेक्स्ट है संघ मिक्सोफाइटा। मिक्सोफाइटा क्या होगा? जीव द्रव जो होगा बिल्कुल पारदर्शी होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फाइलसेरम। नेक्स्ट है संघ यूमाइकोफाइटा। इसमें क्या होगा? ये ट्रू फंजाई होती है, सत्य कवक कहा जाता है इसको। इसका एग्जाम्पल क्या है? म्यूकर। तो ये चीजें आपको लर्न करनी है, इनका एटलीस्ट थोड़े थोड़े नाम आपको लर्न करने हैं, और एग्जाम्पल तो एक तो लर्न होना ही चाहिए। So students, that's all for today.